السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، کیا آپ نے خطاب میں سنا؟ کیا تھا خطاب میں؟ بتائیے، کون سی ایسی چیز تھی جس کے لیے وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے؟ مثلا آپ اپنی ناکام 3 سال کی کارکردگی اور نااہلیت کا غصہ قوم سے اتار رہے ہیں، دنیا سے آپ کمپیئر کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ایڈوائزر، آپ کے مشیر، آپ کے اتنی بڑی بڑی منسٹری آپ کے لوگ ہیں، وہ آپ کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے ہاں سب سے کم مہنگائی ہے، غربت ہے۔ کوئی بتائے کہ ذرا کائنڈلی آپ ذرا خود ہی بیٹھ کر ریسرچ کر لیں، دنیا میں جائیں، دیکھیں کیا ہے لوگوں کا حال۔ ماضی میں آپ نے قوم کو جو پالیسی اور پلاننگ دی، آج تک 3 سال میں جو آپ سے پالیسی اور پلاننگ اس قوم کو ملی، وہ کیا ملی؟ انڈے، مرغی، کٹے، بھینس، اس کا دودھ، اور پیٹرول پمپ پہ جو آپ کے باتھ روم کی صفائی، اور لنگر خانہ، مسافر خانہ، اور کیا دیا ہے بتائیے نا؟ کون سا بڑا پروجیکٹ 3 سال میں آپ نے ایک دیا؟ ایک رنگ روڈ آیا، اس میں بہت بڑا کرپشن آ گئی، باقی آپ تختیاں لگا رہے ہیں۔ آپ قوم سے جتنے آپ نے وعدے کیے ہیں سب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ کتنے وعدے آپ کو یاد دلا دوں؟ آئیے بیٹھیے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یا ان کا کوئی نمائندہ آ جائے۔ ان کے اپنے لوگ، وزیر وزراء بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کس طرح جا کے میڈیا میں ڈیفینڈ کریں۔ چلیں، کچھ تو لوٹے ہیں، بگوڑے ہیں، اور کچھ تو اس طرح کے لیول کے لوگ ہیں جنہوں نے خوشامد کرنا ہے تو نوکری بچے گی، ورنہ تو گئی۔ ابھی دیکھیے گا دسمبر میں ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان لوٹوں کا۔ آیا دوبارہ ان کو نوکری ملتی نہیں ملتی ہے گیٹ نمبر 4 کی۔ تو مثلا ایسی یہ قوم سے خطاب جو وزیر اعظم کرتا ہے، پوری قوم اس طرف توجہ دیتی ہے۔ سچ بتائیے، میجورٹی آف دا لوگوں نے یہ تقریر نہیں سنی ہوگی، اور جنہوں نے سنی ہوگی وہ ہنس رہے ہوں گے، ماں سوائے ان لوگوں کی جن بیچاروں کا کیا کہتے ہیں، کھانا پینا، دلیا چاول، روزگار ان سے منسلک ہے۔ بلکہ انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی، بلکہ صرف ان لوگوں نے سنی ہوگی جنہوں نے یہ کہنا ہے کہ ایک عظیم رہنما دنیا کا عظیم خطاب اس نے کیا ہے۔ حالانکہ اس خطاب میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، مثلا وعدے ہوگا میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا۔ ارے بھائی 3 سال ہو گیا، بتائیے آپ نے اس قوم کو دیا کیا ہے؟ مہنگائی کہاں کھڑی ہے؟ غربت کہاں ہے؟ بے روزگاری کہاں ہے؟ کتنے لوگ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہو چکے ہیں ان کے دور میں۔ 2 کروڑ 17 لاکھ آفیشیل ان کی فگر ہے، اس میں یہ جو ہے اس ملک میں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا 35 لاکھ بے روزگار تھے۔ سوچئے 2 کروڑ 17 لاکھ صرف 3 سال میں کیا دیا ہے آپ نے اس قوم کو؟ انفلیشن ریٹ تھا 4، آپ نے پہنچا دیا 9.2، پھر 14.46 تک گیا، 48 تک گیا، پھر 16 تک چلا گیا۔ آپ کووڈ سے واپی کیا آیا ہے؟ دنیا میں نہیں آیا۔ ڈالر ریٹس آپ نے 123 میں لیا اور پہنچا دیا آپ نے 175 تک۔ کس جگہ آپ نے بتائیے نا؟ 42%، ان کی اپنی رپورٹ اسٹیٹ بینک کی دیکھ لیں، جائیں ویب سائٹ پہ، 42%، کہیں لکھا ہوا ہے 38.9، کہیں 42% تک کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کی جو عوام ہے 42% ایسی عوام ہے کہ 3 سال میں ان کا معاشی دیوالیہ نکل گیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا،
क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, दहशत गर्दी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, चीनी की 65 से लेके कहाँ, पेट्रोल कीमत आप कह रहे हैं बढ़ेगी इंटरनेशनली, और ये हो रहा है और फला हो रहा है। आपने तो कहा था बजट के बाद कि जनाब नहीं होगा, 610 रुपए पेट्रोलियम लेवी की आपने बात की थी, आज कहाँ खड़े हैं आप? बिजली का नर्ख नहीं बढ़ेगा, कहाँ खड़े हैं आप? IMF को आपने ज्वाइन कर लिया दोबारा, एक निजाती और खैराती पैकेज के लिए भागे आपने, मिन्नत समाजत की सऊदी अरब जाके, आपके वजीर खजाना ने उनके सफीर से, उनके वजीर खजाना से, फिर आपने जाकर मिन्नत समाजत की कि मेहरबानी करके खैरात हमें दे दीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना IMF हमें नहीं देगा, क्या कहते हैं, फंड। तो IMF नहीं कहा था, आप गए, खैर मिल गया आपको, लेकिन क्या हुआ? जितने भी आपका रिजर्व है उसमें टोटल लोन है, आप हैं कहां, खड़े कहां हैं? दुनिया से आप कहते हैं कि दुनिया में, मैं चंद चीजें अभी दुनिया की लाता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। तो गोया इस तकरीर में क्या था? मैं होगा। अरे भैया कब होगा और क्या किया, वो कहां गए आप जो कहते थे 100 दिन में? कितनी तकरीरें दिखा दूं? 100 दिन में करप्शन भी खत्म होगी, महंगाई भी खत्म होगी, करप्ट लोग पकड़े भी जाएंगे, अरबों और खरबों डॉलर आ भी जाएंगे, सबको जेल होगी, और मुल्क में जो है वो पासपोर्ट ऊंचा होगा, काबीना छोटी होगी, और क्या कहते हैं, आपके स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगे, पढ़ने क्या कुछ नहीं है। आपने झूठ बोला है कौम से, और कौम अब तमाशा नहीं है, कोई आपकी बात नहीं सुनता। आप यकीन माने इमरान खान साहब, बुरा नहीं मानिएगा, आपकी बात अब कोई नहीं सुनता, कोई मुहज्जिब दुनिया आपको नहीं बुलाता अहम जगहों पे। अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी G10 के हवाले से, देखिए यूके में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भारत किस तरीके से एक्टिव है, आप कहां हैं? USA में अहम तरीन 3 मीटिंग्स हुई जिसमें सरबराह आए, आप कहां थे? UN का हुआ, मोदी ने वहां किस तरह डील किया, आप कहां थे? बांग्लादेश भी आपसे आगे, भूटान भी आपसे आगे, आपके नेपाल भी आपसे आगे। ये 3 साल में आप नवाज शरीफ को जितनी भी गालियां दे, लेकिन 5.8 उसने GDP की थी, आज 7 से ऊपर होती GDP, उनकी टारगेट ये था। आपने 3 साल पे नीचे गिराया, माइनस पे लाया, आज 3 पॉइंट समथिंग पे आप लेकर गए, बड़ी मुश्किल से ऊपर आइए चंद आदत शुमार मैं आपको देता हूं। देखिए नाज़रीन, जो इमरान खान कहते हैं दुनिया से, मैंने चंद चीजें दी हैं आपके सामने, आप देखें क्या है, थोड़े से आदाद शुमार है। US डॉलर रेट जो है पाकिस्तान 170.38, मैं आज की बात बता रहा हूं, हालांकि 175 तक जा चुका है। अफगानिस्तान 90 है, सोचिए अफगानिस्तान 90 है, आप 170 हैं, डूब मरे। बांग्लादेश 85 है, 85.84, इंडिया 74.60, नेपाल 119.75, बैंकॉक यानी थाईलैंड 33.36, भूटान 74.57, मलेशिया 4.5 रिंगिट है। कीनिया का भी दे दिया मैंने, चले ये तो एशिया के हवाले से था, 111.55, ये मैंने चंद अभी ट्वीट्स किए मैं आपके सामने। और पाकिस्तान का 3 साल में बांग्लादेश का जो गिरा है रुपया, वो तो 3 से 4% है, और भारत का 9 से 10%, आपका 41% गिरा है, 41%, शर्म का मुकाम है। आइए एक और चीज देते हैं, GDP एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एशियन कंट्रीज का देता हूं। पाकिस्तान का लिखा हुआ है यहां पे 3.9, इंडिया, सो उसकी बात है, इंडिया 20.1, बांग्लादेश 5.47, मलेशिया 16.1, फिलीपींस 11.8, थाईलैंड 7.5, इंडोनेशिया 7.07, हांगकांग 5.4, सिंगापुर 6.5, पैलेस्टीन 19,
नेपाल बताइए 4.5, श्रीलंका 4.7। अब मैं आपको बताता हूं इन्फ्लेशन रेट, जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे कम है। आइए, पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा आज इन्फ्लेशन रेट है, आप अखबारात में भी देख लीजिए और रिसर्च कीजिए, इनकी वेबसाइट पे देखिए, स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 9.2। हालांकि अगर सतही देखा जाए तो 10 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं 9.2। इंडिया 4.35, बांग्लादेश 5.59, भूटान 5.15, नेपाल 3.49, मलेशिया 2.2, अफगानिस्तान 1.56। अभी देखिए क्या हुआ है अफगानिस्तान में, तालिबान लेकिन मेंटेन किया उन्होंने 1.56। सोचें, थाईलैंड 1.68, ये इन्फ्लेशन रेट है। सिंगापुर 2.5, ताइवान 2.6, फिलीपींस 4.8, वियतनाम 1.7, हांगकांग 1.4, कंबोडिया 2.7। मैं ये एशियन कंट्री के बारे में बता रहा हूं चंद, अभी तो दुनिया का मैं ले आऊं, अगर कतर ले आऊं, यूएई ले आऊं, सऊदी अरब ले आऊं, अमेरिका ले आऊं, जापान ले आऊं, फला ले आऊं, तो सब तो पता ही है। तो एशियन कंट्री में आप सबसे पीछे जा रहे हैं, बताइए। आइए, कुछ और फिगर्स भी हैं, वो भी मैं आपको देता हूं। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में बैरूनी कर्जे, बैरूनी इमदाद और बैरूनी वसाइल पर जो है ना वो इन्हिसार किया। इनका अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है नाज़रीन। आइए मैं आपको एक और फिगर देता हूं। आप कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई आपकी, कितना झूठ बोलते हैं। जिसकी मईशत मुस्तहकम होती है वो आईएमएफ में नहीं जाता, आईएमएफ से भीख नहीं मांगता, आईएमएफ के हर कंडीशन को पूरा करने, उसके पास उसके साइन करने से पहले उसके कंडीशंस को पूरा करना शुरू कर दिया। डॉलर रेट, पेट्रोल, बिजली नर, सब्सिडी खत्म कर दी। अभी साइन ही नहीं हुआ है, तो साइन होगा तो क्या होगा? 500 बिलियन डॉलर्स, 500 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। इससे पहले का जॉब पैकेज लो तो आप 4.2 सऊदी अरब ने आपको दिया है, आपको नजाती और खैराती। तो जिसकी मुस्तहकम होती है मईशत, वो खैरात नहीं लेता, वो खैराती पैकेज नहीं लेता, वो निजाती पैकेज नहीं लेता, वो आईएमएफ से भीख मांग के लेट कर जो है वो उससे हर उसकी बात मांग कर जो है वो पैकेज नहीं लेता, जिसकी मईशत मुस्तहकम होती है। तो ये इसको कौन जस्टिफाई करे? मौजूदा हुकूमत के 3 साल दौर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की, जैसे मैंने कहा, 42.1% से ज्यादा गिरी है। बांग्लादेश में तकरीबन 3 से 4% और भारत में तकरीबन 9 से 10% गिरी है। फर्क देखें आप। मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन 27.5 अरब के बैरूनी कर्जा लिए, तकरीबन 81.7 अरब के तरसीलात जर यानी रेमिटेंस आई, और आईएमएफ ने 4.2 अरब नकद दिए। इसके अलावा भी यूके ने, अमेरिका ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, आपके एशियन बैंक ने और दूसरे जराए से इनको काफी पैसे मिले, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। मैं सिर्फ इन रकम का पूछ रहा हूं कि आपने इन बैरूनी इमदाद और कर्जे इतने बड़ी तादाद में लिए हैं, आपका एक प्रोजेक्ट नहीं है पाकिस्तान में, कहां गया वो पैसे? उसके बाद आइए, छोटे छोटा मैं आपको बता रहा हूं। 3 सालों में मौजूदा हुकूमत का तजारती खसारा 3 सालों में 11.9 अरब डॉलर, जो इनके अपने पिछले साल से तकरीबन दुगना है। सबसे बड़ी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 13.5 इंटरेस्ट रेट से एकदम 7% पे कर दिया। पहले उसने 13.5 रखा, जिसमें हॉट मनी के जरिए इनके रिश्तेदारों दोस्तों ने, एटीएम मशीन ने पैसा दुबई से लाके, जहां 3-4% था, यहां रखा और यहां से हॉट मनी भी निकाला, इंटरेस्ट भी निकाला और अपना पैसा भी निकाल के ले गए। इसकी तो इंक्वायरी होगी बहुत बड़ी। उसके बाद है मौजूदा हुकूमत का तजारती खसारा हर महीने 3.5 अरब डॉलर है। हर महीने 15 दिन में 2 अरब डॉलर की कमी हुई रिजर्व में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मईशत वैसे ही तबाह थी। जून 2021 के बाद मईशत की तबाही का जनाजा निकल गया। यह भी था। पिछली हुकूमत में सर्कुलर डेट था 11.27 अरब,
0.27 तकरीबन 1200 अरब रुपए था। मौजूदा हुकूमत का दावा था कि सर्कुलर डेट को वो 500 अरब से नीचे लाएंगे। 3 साल में 11.65 100 अरब डॉलर हो चुका है। इतना बढ़ चुका है, बताइए, तकरीबन 1200 बढ़ चुका है। गोया इस वक्त सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए से तजावज कर गया है, 24 समथिंग पे चला गया है। ये मैं अपनी फिगर नहीं दे रहा हूं, ये इनकी फिगर दे रहा हूं, हुकूमत की फिगर दे रहा हूं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मईशत की, मैंने आपको बताया। बाकी आप देख लें किस तरीके से लोग मर रहे हैं भूख में, किस तरीके से खुदकुशी हो रही है, किस तरीके से लोगों का रोजगार नहीं है, किस तरह खसारा हो रहा है, किस तरीके से कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। मेडिसिन में 1600% इजाफा हो चुका है। अशियाए खुर्दनोश आप देखें रोजाना लगाता है कोई, इन्फ्लेशन 14 पॉइंट पे चला जाता है, 15 पे चला जाता है। हर चीज कीमत बढ़ रही है, 300 400 500% बढ़ चुकी है। बिजली, गैस और लोगों की इस्तेदाद वही महदूद है, कोई इस्तेदाद में इजाफा नहीं हुआ। आप कहते हैं दुनिया, तो दुनिया में फैसिलिटीज भी दी गई है, इस्तेदाद में भी इजाफा है, मेडिकल भी फ्री है, क्या कुछ नहीं वहां दिया जा रहा है। आप उसका मुकाबला करते हैं और चंद एशियन कंट्री का मैंने आपके सामने देख लिया। तो बताइए, झूठ के भी कोई पैर होते हैं? कोई शख्स कितना झूठ बोल सकता है, कितना? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।